Welcome students. All of you are very well know about the process of transcription and translation, which are the parts of gene expression. Today we will discuss about regulation of gene expression, means how can we control the process of transcription as well as translation, and the sub point is lac operon. Before we discuss the operon concept, operon concept is given by the scientist whose name is Jacob and Monod in 1961. When they studied on Escherichia coli, they found, उन्होंने ये पाया कि एस्चेरिया कोलाई के अंदर जो एंजाइम का सिंथेसाइज होता है, जो एंजाइम का फॉर्मेशन होता है, वो उस एस्चेरिया कोलाई के सर्वाइवल मीडिया के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। सर्वाइवल मीडिया मीन्स एंजाइम को न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है, न्यूट्रिशन का नेचर क्या है, जैसा न्यूट्रिशन का नेचर होगा उसी नेचर के अकॉर्डिंग उसके डीएनए से एंजाइम सिंथेसाइज के लिए जो कोडिंग होते हैं वो चेंज होते हैं। तो वो किस प्रकार चेंज होंगे वो अपन इसमें स्टडी करेंगे। तो पहला ओपेरॉन। ओपेरॉन क्या है? ओपेरॉन इज ए डीएनए सेगमेंट, डीएनए का एक लॉन्ग सेगमेंट है विच कॉन्टेन ऑपरेटर जीन एंड स्ट्रक्चरल जीन। दे आर मोर देन वन, either 1, 2, 3 and so on, as requirement for the synthesizing of enzymes according to nature. Okay, तो operon is a long DNA segment which contain operator and structural gene. Okay, then what is lac operon? तो फिर lac operon क्या है? lac operon here lac represent lactose disaccharide, means the operon which controls metabolism of lactose. Lac operon means the operon which control the metabolism of lactose. lactose के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, that unit is known as lac operon. Now what is the structure of lac operon? operon का स्ट्रक्चर क्या होता है? We already know that in Escherichia coli bacteria, the genetic material is in the form of circular DNA. जेनेटिक मटेरियल जो है वो सर्कुलर डीएनए में है, सर्कुलर डीएनए। हियर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसके एक पार्ट को ड्रॉ कर रहा हूँ, ओनली ए सिंगल पार्ट।
ये इसका एक पार्ट है। इस डीएनए सेगमेंट पर, दैट इज ए लॉन्ग डीएनए सेगमेंट, इस डीएनए सेगमेंट पर डिफरेंट पार्ट होते हैं, जीन्स होते हैं। दीज आर पीजी फॉर प्रमोटर जीन, आरजी रेगुलेटर जीन, अगेन पीजी प्रमोटर जीन, ओजी ऑपरेटर जीन, then structural gene 1, structural gene 2, structural gene 3. They are structural gene. Here, what is the function of this gene? इन जीनों के क्या फंक्शन होते हैं? सबसे पहले प्रमोटर जीन, एज वी स्टडी इन द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन में अपने पढ़ा था कि मैसेंजर आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज नोन एज आरएनए पॉलीमरेज। तो ये वाला जो प्रमोटर जीन है, ये प्रमोटर जीन उस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, अटैचमेंट साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। देन द रेगुलेटर जीन, दिस जीन इज नोन एज एसओ, इट रिटर्न इन आई जीन। तो व्हाट डू यू मीन आई? व्हाट इज आई? हियर आई रिप्रेजेंट द इनहिबिटर जीन, means this gene synthesize a messenger RNA which act as a repressor and stop the synthesizing of enzyme. So it is known as inhibitor gene. Okay, again promoter gene. This promoter gene is provide again the attachment for the RNA polymerase enzyme. Then operator gene, this gene controls the synthesizing process of enzyme. एंजाइम की सिंथेसाइजिंग प्रोसेस को कंट्रोल करता है, आइदर दे स्टॉप और दे रन, या तो वो स्टॉप कर देते हैं या इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे वो अपना के स्टडी करेंगे। दीज आर द स्ट्रक्चर जीन, दीज स्ट्रक्चर जीन SG1, SG2 and SG3. There are 3 type of structure gene found in lac operon. lac operon के 3 तरह के स्ट्रक्चर जीन अपन को मिलेंगे। Each structure gene synthesize a messenger RNA. Means there are 3 genes, so they synthesize a 3 messenger RNA. Each messenger RNA synthesize a protein, a polypeptide chain by the process of translation. So here 3 type of enzyme are synthesized, 3 type of protein are synthesized by the process translation. Okay, so here 3 piece of messenger RNA form, they are interconnected and each piece is known as cistron. हर piece को अपन क्या कहेंगे? cistron, which form a particular enzyme. So the total messenger RNA is known as polycistronic messenger RNA. polycistronic messenger RNA. Is it clear? तो आपको बात समझ में आ गई। ये है इसके अंदर ओपेरॉन का स्ट्रक्चर कि ओपेरॉन क्या है। तो व्हाट इज ओपेरॉन? ओपेरॉन इज नथिंग, ओपेरॉन इज ए small long fragment of DNA. Okay, now we study the mechanism of
जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर क्या है, मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन का मैकेनिज्म क्या है, मीन्स कैसे अपन इसका रेगुलेशन करते हैं। तो इस मैकेनिज्म को पढ़ने के लिए अपन दो तरह की कंडीशन यहाँ पर लेते हैं। एक कंडीशन वो है जिसमें इस एस्चेरिया कोलाई को लैक्टोज, क्योंकि अपन ऑपेरॉन पढ़ रहे हैं तो उस एस्चेरिया कोलाई के एक्सटर्नल जो मीडिया है, जो सर्वाइवल मीडिया है, उसमें उसको लैक्टोज जो डाइसैकेराइड है वो नहीं मिल पा रही है, मीन्स लैक्टोज एब्सेंट है। तो ये एस्चेरिया कोलाई किस तरह से फंक्शन करता है, और जब एक्सटर्नल मीडिया के अंदर उसको लैक्टोज डाइसैकेराइड प्रोवाइड होती है, उसको मिलती हैं, तब इसके अंदर एस्चेरिया कोलाई जो है वो अपने मैकेनिज्म को किस तरह से चेंज करता है, इस बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट, जब लैक्टोज एब्सेंट है इसके सर्वाइवल मीडिया के अंदर। ये पॉइंट, व्हेन लैक्टोज इज absent in external media, एक्सटर्नल मीडिया के अंदर लैक्टोज एब्सेंट, देन तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में क्या होगा। अपन इसके स्ट्रक्चर को पढ़ चुके हैं। लैक ऑपेरॉन, दैट इज द प्रमोटर जीन PG, that is the inhibitor gene, that is known as regulator gene, that is again promoter gene, that is operator gene, that is structural gene 1, structural gene 2 and structural gene 3। ओके, अब क्या होता है, किस तरह से प्रोसेस चलता है इसके अंदर, वो स्टडी देखिए आप इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, सबसे पहले एक RNA पॉलीमरेज जो है, RNA पॉलीमरेज बाइंड्स विद प्रमोटर जीन से बाइंड होता है। एंड स्लाइड्स टूवर्ड्स द रेगुलेटर जीन पे स्लाइड करेगा। जैसे ही वो स्लाइड करेगा, इट सिंथेसाइज ए मैसेंजर RNA, एक mRNA को ये सिंथेसाइज करता है। ये mRNA सिंथेसाइज किया बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से। And this messenger RNA convert into a protein that is known as repressor। इस प्रोटीन को अपन क्या कहेंगे, repressor। What is repressor? Repressor is a protein by the process that is known as translation। इस प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन कहेंगे। This repressor is synthesized in active form। ये एक्टिव फॉर्म में रहेगा। एज इट सिंथेसाइज, जैसे ही सिंथेसाइज होगा, दिस रिप्रेसर बाइंड द ऑपरेटर जीन को बाइंड कर देगा। बाइंड्स विथ ऑपरेटर जीन। देन व्हाट हैपन, क्या होगा, सेकेंड प्रमोटर जीन है, उस जीन के ऊपर जब पॉलीमरेज, अनदर RNA पॉलीमरेज बाइंड विथ प्रमोटर जीन के साथ बाइंड होगा, बट दिस प्रमोटर जीन इन द प्रेजेंस ऑफ रिप्रेसर डू नॉट स्लाइड ऑन द स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर स्लाइड नहीं होंगे। तो नहीं होंगे तो स्ट्रक्चरल जीन मैसेंजर RNA का फॉर्म नहीं करेगा, तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस भी नहीं होगा।
ट्रांसलेशन का प्रोसेस नहीं होगा तो किसी टाइप का कोई प्रोटीन जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होगा। दैट इज द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। मीन्स यहाँ पर प्रोटीन को क्या कर दिया है, स्टॉप कर दिया है। किसने किया है, रिप्रेसर ने। तो इस तरह का जो ये प्रोसेस होता है कब होता है, जब लैक्टोज अब्सेंट रहेगा इन सर्वाइवल मीडिया। नाउ व्हाट हैपन व्हेन लैक्टोज इज फाउंड इन द सर्वाइवल मीडिया, देन क्या होगा, व्हेन लैक्टोज इज present in external media, then what happen, that is operon, promoter gene, regulator gene, another promoter gene, operator gene, structural gene 1, structural gene 2 and structural gene 3. They are also called gene Y, gene Z, gene Y and gene A. So we can remember this sequence by P I P O Z Y A, Pipozia, Pipozia. And that is the cell membrane of Escherichia coli, cell membrane of Escherichia coli. And the lactose molecule found outside of this cell membrane, they are the lactose molecule in external media, lactose. Now again start. RNA polymerase binds with promoter gene, and slide on regulator gene. Regulator gene synthesize messenger RNA by the process of transcription. Then this messenger RNA synthesize a protein that is known as repressor. And that process is known as translation. As the repressor synthesize in active form, it get lactose molecule. Lactose molecule and the complex become inactive. Initially lactose molecule come into the cell के अंदर जब आएगा तो इसको फैसिलिटेट कौन करेगा, इसको अंदर कौन लाएगा? देयर आर प्रेजेंस ऑफ सम परमिएज एंजाइम ऑन द सेल मेम्ब्रेन विच फैसिलिटेट द लैक्टोज मॉलिक्यूल इनटू द सेल के अंदर आने के लिए उनको हेल्प करेगा, दैट इज परमिएज एंजाइम, परमिएज। ओके, तो ये परमिएज एंजाइम जो है लैक्टोज मॉलिक्यूल को सेल के अंदर लाने के लिए उसको फैसिलिटेट करेगा, उनको हेल्प करेगा। अब क्या होता है, ये इनएक्टिव हो गया, ये कॉम्प्लेक्स जो है रिप्रेसर जो है, इस रिप्रेसर से जैसे ही लैक्टोज का अटैचमेंट होगा तो ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है ये कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव हो गया। देन इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स जो है वो इस ऑपरेटर जीन के साथ में बाइंड अप नहीं हो पाएगा, वो बाइंड अप नहीं हो पाएगा। अब ये ऑपरेटर जीन कैसा है, बिल्कुल फ्री। फिर क्या होगा,
ये जो प्रमोटर जीन है उस प्रमोटर जीन के ऊपर भी कौन, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है। ऑपरेटर जीन यहाँ पर फ्री है तो ये स्लाइड करेगा। जैसे ही वो स्ट्रक्चरल जीन फर्स्ट पर स्लाइड करेगा, एक मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होगा, दैट इज नोन एज सिस्ट्रॉन। इसको अपन क्या कहेंगे, सिस्ट्रॉन। है क्या है ये बात एक्चुअल में, ये मैसेंजर आरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। Then the RNA polymerase slide on structure gene 2 and it also form a messenger RNA, that is another cistron, means type of messenger RNA. Then slide to structure gene 3, formation of messenger RNA, that is another cistron, ये भी cistron है, and forming a complete messenger RNA which have या which contain more than one cistron. So this messenger are known as polycistronic messenger RNA. Now what happened? These messenger RNA means these cistron synthesize a polypeptide chain or enzyme that is known as beta galactosidase by the process of translation के प्रोसेस से बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को सिंथेसाइज किया। दूसरा जो सिस्ट्रॉन है मैसेंजर आरएनए, उसकी कोडिंग के अकॉर्डिंग इट सिंथेसाइज परमिएज एंजाइम and the third cistron synthesize the enzyme that is known as transacetylase। मीन्स क्या हुआ कि इन्होंने स्ट्रक्चर जीन ने 3 टाइप के एंजाइम को सिंथेसाइज किया, बीटा गैलेक्टोसाइड, परमिएज एंड ट्रांसएसिटाइलेज। और ये एंजाइम अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ डाइसैकेराइड इन द नेचर, उसके मेटाबॉलिज्म के यानी कि नेचर के अंदर जो लैक्टोज प्रेजेंट था, लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म कंप्लीट करने के लिए उन्होंने इस मेटाबॉलिज्म में काम आने वाले, यूज आने वाले एंजाइम का क्या किया है, सिंथेसाइज किया है। और ये तीनों एंजाइम मिल करके इस लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म कंप्लीट करेंगे और एनर्जी सिंथेसाइज करेंगे। ओके तो बीटा गैलेक्टोसाइड क्या करता है, सबसे पहला एंजाइम जो है अपने पास में बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो ये क्या काम करेगा, ये इस डाइसैकेराइड को ब्रेकअप करेगा, तोड़ेगा। किसको, लैक्टोज को ब्रेक कर देगा, तोड़ेगा। किस किस में, नंबर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, नंबर 2 गैलेक्टोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ओके दूसरा एंजाइम जो सिंथेसाइज हुआ परमिएज, ये क्या काम करता है, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर कि ये जो है परमिएज एंजाइम इस लैक्टोज को सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ कैरी करने के लिए फैसिलेशन देता है, उसको फैसिलेशन प्रोवाइड करता है, इजी से ये लैक्टोज मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर कर जाए। तो सबसे पहला परमिएज कहाँ से आया, ये वाला, ये तो अभी प्रोड्यूस हुआ है। तो पहला कहाँ से आया, सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ अमाउंट के अंदर एक कपल ऑफ पेयर के फॉर्म में परमिएज एंजाइम प्रेजेंट रहता है। वो एक लैक्टोज मॉलिक्यूल को अंदर की तरफ कैरी करता है और वो इनएक्टिव कर देगा किसको, रिप्रेसर को। और जैसे ही इनएक्टिव करेगा अनदर परमिएज एंजाइम्स आर फॉर्म विच फैसिलेट द अनदर लैक्टोज मॉलिक्यूल। मीन्स जैसे ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, लैक्टोज मॉलिक्यूल का अंदर की तरफ इंटेक करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट हो जाएगा। लार्जर मॉलिक्यूल या ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करेंगे। तीसरा जो एंजाइम है ट्रांसएसिटाइलेज, वो क्या काम करेगा, एसिटाइल ग्रुप को एसिटाइल को एंजाइम ए से
ट्रांसफ़र करेगा गैलेक्टोसाइड्स पे या ग्लूकोसाइड्स पे या लैक्टोसाइड्स के ऊपर। तो ज़्यादा जो रोल है वो बीटा गैलेक्टोसाइड एंड परवेज। ओके, तो ये इस तरह से एंजाइम जो फॉर्म हुए वो किसके अकॉर्डिंग फॉर्म हुए? नेचर के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट था, उस लैक्टोज के अकॉर्डिंग उसका मेटाबॉलिज्म करने के लिए एंजाइम फॉर्म होते हैं। तो इट इज़ क्लियर, आपके सामने बिल्कुल क्लियर है कि किस तरह से अपन नेचर के अंदर जो डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल हैं उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर एंजाइम का फॉर्मेशन होता है और प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो इसी को अपन क्या कहते हैं? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। आई थिंक आपको रेगुलेशन का प्रोसेस, रेगुलेशन इन जीन एक्सप्रेशन का प्रोसेस जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आपको किसी तरह की इसमें प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में श्योर लिखिएगा। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी आप मुझे मोटिवेट कर सकते हो। आपका मोटिवेशन ही मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी।